غم گسارانِ سر سید کا ایک بڑا اجتماع ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ سر سید نے کیا کارنامہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں 1857 کے بعد جو جدید تعلیم کی سب سے پہلی شمع روشن کی وہ سر سید نے سب سے پہلے سن 1862 میں غازی پور میں کی۔ وہ عمارت آج بھی موجود ہے، اور میں جب وہاں دیکھنے گیا تو جو لوگ علی گڑھ میں پڑھے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ایک بنی بنائی مارسن کوٹ کی شکل کی ہاسٹل ہے، اس کی دیواریں ابھی قائم ہیں، چھتیں توڑ دی گئی ہیں، اور وہ جگہ آج گورنمنٹ کا ایک اسکول وہاں چلتا ہے۔ ہم جب وہاں گئے تو ہم نے وہاں کے پرنسپل سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جدید تعلیم کی شمع روشن ہوئی تھی۔ سر سید نے جو کارنامہ کیا یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جن حالات میں کیا، جس کیفیت میں کیا، وہ ایک حیرت انگیز۔ سینکڑوں سال کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت گئی تو یہ لٹی پٹی قوم بے سہارا تھی، سامنے کوئی منزل نہیں تھی، کوئی مستقبل نہیں تھا۔ سر سید یہ سمجھ گئے تھے کہ ترقی کا راستہ تعلیم سے ہو کے گزرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے جب علی گڑھ میں شروع کی تو پیسے نہیں تھے ان کے پاس، جیسا ابھی کہا گیا۔ انہوں نے ایک تھیٹر کا انتظام کیا اور علی گڑھ میں یہ اعلان کیا کہ آج ہم ایک تھیٹر علی گڑھ شہر میں کریں گے، اور اس میں یہ کہا کہ سر سید ناچیں گے بھی۔ شہر امڑ پڑا سر سید کو دیکھنے کے لیے ان کا تھیٹر کیا ہے، اور سر سید نے جب اپنی تقریر شروع کی اور بتانا شروع کیا تو لوگ سکتے میں آ گئے، لیکن ایک منچلے نے کہا، حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ناچیں گے۔ سر سید اسٹیج کے نیچے گئے، زنانے کپڑے پہنے اور گھنگرو پہنے۔ تصور کیجئے ایک 70 سال کا بڈھا، لہیم شہیم قد، موٹا تگڑا آدمی، وہ گھنگرو پہ ناچ رہا ہے، غزل گا رہا ہے، اور یہ مانگ رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مستقبل کو بناؤ۔ اور وہاں چندہ جمع ہوا اور ایک مدرسہ قائم ہوا۔ سر سید نے اپنی تحریک جب شروع کی تو ان کے پیچھے فتویٰ شروع ہو گیا۔ ایک دہلی کے مفتی کریم اللہ، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ سر سید جو ہے یہ ملحد ہو گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آج منکر بند ہو گیا ہے، اس کے مدرسے میں جانا جنت کے بجائے دوزخ میں رہ جانے کا کام ہے۔ اور اسی کے بعد فرنگی بہل کے مولوی عبدالحی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا، اور اس زمانے کے فتوے ایسی سلیس اور ایسی سخت اردو میں ہوتے تھے کہ لگتا تھا یہ جناتی زبان میں لکھے گئے، آج بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ سر سید ایک گنہگار ہے، بدکار ہے، اور یہ مسلمانوں کو کے خلاف بہکا رہا ہے، دین سے لٹا رہا ہے۔ سر سید اپنی کوشش میں لگے رہے، اپنی جھولی پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر اپنی قوم سے یہ کہتے رہے کہ دیکھو منزل ملنا ہے تمہیں اگر، تو تمہیں جدید تعلیم لینی پڑے گی۔ یورپ کروٹ لے چکا تھا، سائنٹیفک اپروچز شروع ہو چکی تھی، اور وہ سر سید اس کو دیکھ کے آئے تھے۔ لیکن یہاں تک ہی نہیں ہوا، یہاں کے مولوی حضرات مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں سے فتویٰ لائے، اور فتوے کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ یہ شخص
अगर तौबा कर ले और ये माफी मांग ले तो इसको कत्ल न किया जाए, लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगता तो उसको कत्ल कर दिया जाए और उस इमारत को जो सर सैयद ने बनाई थी यूनिवर्सिटी के लिए उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन सर सैयद ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया और वो खामोश रहे। तकलीफ उनको उस वक्त होना शुरू हुई जब एक मुहिम शुरू हुई और वो मुहिम ये थी कि इनको चंदा न दिया जाए, और उसका कर्ब सिर्फ चंद जुमलों में आपको मिलेगा जब वो लाहौर का दौरा कर रहे थे। और उस लाहौर के दौरे में एक जम गफीर इकट्ठा हो गया, इसलिए कि सर सैयद एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके थे। एक तरफ ये कहा जा रहा था ये मुनकिर है, ये मुलहिद है, ये काफिर है और इसकी मदद न की जाए, इसके मदरसे को तोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ उस शख्स को देखने के लिए लिखने वाले कहते हैं एक हुजूम खड़ा हो गया लाहौर में, और वहाँ सर सैयद के चंद अल्फाज उनके कर्ब और उनकी तकलीफ का बयान करते हैं। सर सैयद कहते हैं कि मैं बेकन आपके लिए मुलहिद हूँ, मैं मुनकिर हो गया हूँ, मैं एक चमार से ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक आपका के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, आपके बच्चों की तरक्की देना चाहता हूँ, और आपके जो महलात हैं, जो आपके मकानात हैं, हवेलियाँ हैं, वो इन्हीं अछूतों ने, यही चमारों ने, यही छोटे लोगों ने, यही काफिरों ने बनाई हैं। आप उसको तो नहीं तोड़ते हैं। आपकी मस्जिद बनाने के लिए हमारे ऐसे काफिर और हमारे ऐसे चमार और छोटे लोग मस्जिद बनाते हैं जहां आप सजदे करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, उसको तो नहीं तोड़ते हैं। तो आप इस इमारत को क्यों तोड़ना चाहते हैं? नतीजा हुआ कि मौलाना हाली ने लिखा कि सख्ते का आलम था, लोग पता रो रहे थे और लोग अपनी औकात से ज़्यादा उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, और यूं 1878 में अलीगढ़ एमओ कॉलेज की बुनियाद पड़ी, अजीम इमारतें बनी, विक्टोरिया गेट और स्टेची हॉल एक ऐसी कैफियत में आया कि लोग अश कर उठे, और ये लगा कि ये तालीम का एक नया ताजमहल खड़ा हो गया। इन सारी कोशिशों के बावजूद सर सैयद की मुखालफत होती रही, लेकिन आप देखिए कि वो शख्स की हालत क्या थी। उस वक्त यूपी का गवर्नर सर विलियम लीवर, उसने एक किताब लिखी हमारे रसूल के खिलाफ, और उस किताब को लंदन में छपी। सर सैयद बेचैन हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस किताब का रिवर्टर लिखूंगा। उस वक्त 4000 रुपया उसकी कीमत का तखमीना किया गया, और ये मुल्हिद और ये काफिर, उसने कहा कि मैं इसका जवाब लिखूंगा। अपना घर का सामान बेचा, सूद पे रकम ली। दोस्त अहबाबों ने कहा कि मत करो ये, उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाके इस किताब को लंदन में छापूंगा, इसने मेरे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी की है। और वो वहाँ गए, मकरूज हो गए, और उन्होंने जो मौलाना मोहसिन मुल्क को खत में लिखा कि मैं मकरूज तो हो गया हूँ, लेकिन अपने रब के सामने जब जाऊंगा, अपने रसूल के सामने जाऊंगा, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं फकीर हो गया, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वो लोग जो मुहाफ़िज़ दीन थे, जो फतवे दे रहे थे, वो अपने हिजरों में, अपनी खानकाहों में बैठ के दीन की हिफाजत करते रहे। तो सर सैयद की ये लड़ाई ऐसी तकलीफ दे है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल होता है। अभी हमारे बहुत अजीज कुर्बान अली ने कहा कि वॉल्यूम्स के वॉल्यूम लिखे जा सकते हैं, लेकिन 1778 में के बाद जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी बनी, 400 से ज़्यादा ग्रेजुएट हिंदुस्तान में हो चुके थे। 1858 के में
अंग्रेजी स्कूल खुलना शुरू हो गए थे। 400 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स थे, जिसमें 19 मुसलमान थे, और वो भी या तो बंगाल से थे या मद्रास से थे, और इस पूरे सेंट्रल एशिया में कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन 20 साल के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, वो दीवार टूट गई जहां यह एक तसादुम था जदीद तालीम और दीनी तालीम के बीच में। स्कूल खुलने शुरू हो गए और जगह जगह शिबली कॉलेज खुल गया, फैज़ान कॉलेज खुल गया, लखनऊ ऐसे शहर में 3 कॉलेजेस खुल गए, बिहार और यूपी के हर शहर में इस्लामिया कॉलेज खुल गए, जामे मिलिया अपने उरूज पे पहुंच गया, वो भी खुला। ये सर सैयद के कारनामा था। सन 30 तक आते आते 1930 तक आते आते अलीगढ़ अपने उरूज पे पहुंच गया था। इस पूरे कॉन्टिनेंट का वो एक गहवारा था, तालीम का, तरबियत का, साइंटिफिक रिसर्च का, और एक तहजीब का ऐसा गहवारा था कि मजाज भी कह गए जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा। ये सिलसिला चल रहा था कि कुछ लोगों ने फैसले किए और हिंदुस्तान के बंटवारे की बात की, और उस बंटवारे में नतीजा ये हुआ कि हम जो चले गए वो महाजिर हो गए और हम अपने मुल्क में अजनबी हो गए। हमने सोचना बंद कर दिया। हमारे हिंदू भाई सर सैयद के नक्श कदम पे ढूंढते ढूंढते मंजिल नजी हो गए और हम जहां खड़े थे वहीं रह गए। उसके बाद ऐसा दौर आया, जिस बस्ती में हम रहते थे भाइयों की तरह, उस बस्ती में हम आज गुनहगारों की तरह खड़े हो गए। अब तो दौर यह है कि गुनहगारी नहीं, देशद्रोही भी बन गए। हमारी सोच बदल गई, हमने सोचना बंद कर दिया। हमने ये फैसला किया कि हम अपने लिए जिएं, और जब हम अपने लिए जीते हैं तो हमको फिक्र दूसरे की नहीं होती। यही सिलसिला हुआ। कहा यह जाता है कि मुसलमान तालीम में पीछे हो गया, ऐसा नहीं है। सर सैयद ने जो क्षमा जलाई थी, उसके अफाकरीन के दोस्तों के साथियों ने उसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन इस कौम को आज हम जहाँ खड़े हैं वो बिल्कुल वही वक्त है जो 1857 के बाद मुसलमानों के साथ हुआ था। आज सर सैयद नहीं है, लेकिन न सर सैयद आएंगे, लेकिन सर सैयद की फिक्र, सर सैयद की तहरीक, यही एक मंजिल है जो हमको मंजिल तक ले जा सकती है। हमको अपने से और दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। आज हम उस सोच के नहीं रहे जब इंसान दूसरों के लिए सोचता था। आज हम अपने लिए जीते हैं, और यही बात उनके सर सैयद के जो सबसे ज़्यादा चाहने वाले और सर सैयद को जो सबसे ज़्यादा समझने वाला जो शख्स मेरी समझ में आता है वो अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद ने वो सारे काम किए जिसकी निशानदेही सर सैयद ने की थी। वो जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और जो सर सैयद का तसव्वुर था कि तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, अगर तरबियत नहीं है तो इंसान नई वैश्य पैदा होते हैं। और यकीनी तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब हम अपने को अलीग कहते हैं तो उसके माने यही हैं कि हमने तालीम भी ली है और तरबियत भी ली है, और तब हम एक दूसरे को अलीग कहते हैं। ये सब कुछ हमने सामने हुआ है। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें कोई और चारा नहीं है। सिर्फ एक ही चारा है कि वो तहरीक, वो फिक्र जो सर सैयद ने हमको दी थी, हमें उस पर चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। बस यही कह के हम रुखसत हैं कि सर सैयद हम शर्मिंदा हैं, और अब कोई सर सैयद आने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।